गुजरात के वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में एक फैशन शो का आयोजन किया गया। वडोदरा के सयाजी अस्पताल के ऑडिटोरियम में महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को एक मंच देने के उद्देश्य से एक फैशन शो का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसके चलते वडोदरा की मनीषा डिजाइन हाउस द्वारा फैशन पर्व के तहत इस फैशन शो का आयोजन किया गया। અમારું જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એમડીએચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન એ ગવર્મેન્ટ ઓથોરાઇઝડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, 12 યર્સથી વડોદરામાં સ્થિત છે. સેન્ટર્સ છે વાઘોડિયા, મકરપુરા, સુભાનપુરા, ઇલોરાપાર. અહીં અમે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ, ફેશન ડિઝાઇનિંગ કોર્સીસ ઓફર કરી રહ્યા છે ગર્લ્સ અને બોયઝને. હવે ફેશન પર્વ 2025 એક પ્લેટફોર્મ છે, એક સપોર્ટિવ નેટવર્ક છે, જેના દ્વારા અમારી જે સ્ટુડન્ટ્સે ગાર્મેન્ટ્સ બનાવ્યા છે, ડિઝાઇન કર્યા છે, એ એમને શોકેસ કરવાનો અમે મોકો આપી રહ્યા છે, જેથી કરીને એમનો કોન્ફિડન્સ વધે, એમને માર્કેટમાં સ્થાન મળે અને માર્કેટ એક્સપોઝર મળે. એના માટે છે. એટલે આ ફેશન પર્વ 2025 દ્વારા અમે એક સોસાયટીને અને ઓડિયન્સને મેસેજ પાસ ઓન કરવા માંગીએ છીએ, વુમન એઝ અ ડિઝાઇનર बनी सके छे, हाउ सक्सेसफुली अ वुमन कैन बिकम अ डिजाइनर। भारत के सांसदों की एक प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंचा है, जहां उन्हें जापान का समर्थन मिला है। भारत के सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 22 से 24 मई तक जापान की सफल यात्रा पूरी की, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखा गया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने किया, जिसमें वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस यात्रा के दौरान सांसदों ने जापान में बसे भारतीय समुदाय से संवाद करते हुए भारत की शून्य सहनशीलता वाली आतंकवाद विरोधी नीति को साझा किया, जिसके बारे में वडोदरा सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी ने जानकारी साझा की। ગ્લોબલ આઉટરીચ મિશન, જેની અંદર વિવિધ 7 ડેલિગેશનો વિશ્વભરમાં આતંકવાદ ખિલાફની લડાઈમાં ભારતની સાથે વિશ્વનું સમર્થન લેવા માટે નીકળ્યા છે. અમારું ડેલિગેશન આપણા લીડર શ્રી સંજય કુમાર ઝાજીના નેતૃત્વ હેઠળ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા અને જાપાનના પ્રવાસ પર નીકળ્યું છે. ત્યારે જાપાનનો આ 3 દિવસીય પ્રવાસ આજે અંત તરફ જઈ રહ્યો છે. આ સમગ્ર 3 દિવસ દરમિયાન મેરેથોન મીટિંગ્સમાં ઘણા બધા મહત્વપૂર્ણ લોકો એમના સાથે ઓલ પાર્ટી ડેલિગેશને બેઠક યોજી અને ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક કયા પ્રકારે પાકિસ્તાન દ્વારા આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, વિશ્વ જ્યારે પાકિસ્તાનને વિવિધ પ્રકારની ફાઇનાન્શિયલ જ્યારે સહાય કરતું હોય, એ ફાઇનાન્સીસનો ઉપયોગ કઈ રીતે તેઓ આતંકવાદને સ્પોન્સર કરવા માટે કરી રહ્યા છે અને કયા પ્રકારે ઓપરેશન સિંદૂર અંતર્ગત માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ હેઠળ આપણા સેનાના જવાનોએ પાકિસ્તાનની અંદર આતંકના ઠેકાણાઓને નસ્ત નાબૂદ કર્યા છે, આ તમામ બાબતની વાત કરવામાં આવી છે. એક વાત પુરાવા સાથે ઓલ પાર્ટી ડેલિગેશનના તમામ સભ્યોએ વિવિધ વ્યક્તિઓને અને વિવિધ બેઠકોના લેવલ પર રજૂ કરી છે. આ 3 દિવસના દોરા દરમિયાન જાપાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રીશ્રી, જાપાનના હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવના સ્પીકર એટલે અધ્યક્ષશ્રી, જાપાનના પૂર્વ રક્ષામંત્રીશ્રીઓ, જાપાનના વિદેશ મંત્રીશ્રી, તમામ લોકો સાથે 1-to-1 બેઠક યોજી અને ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને પુરાવાઓ પણ આપણે એમને હસ્તગત કર્યા છે. સાથે સાથે જાપાનના સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ, જાપાનના જે મેઇન મીડિયા હોય ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ, એમની સાથે પણ બેઠક યોજી અને પુરાવા સાથેની માહિતી એમને પણ શેર કરવામાં આવી છે.
અને આજના દિવસે જાપાનના અંદર રહેતા ભારતીય સમાજના ભારતીય સમુદાયના લોકો સાથે પણ ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા કન્વર્ઝેશનના માધ્યમથી વિસ્તૃત ચર્ચા કરી અને ભારતીયતાની વાત અને ભારતની વાત સમગ્ર વિશ્વ સુધી પહોંચે એ માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે. હવે ડેલિગેશન આજે જાપાનથી કોરિયા તરફ રવાના થશે અને આવતીકાલથી કોરિયાનો પ્રવાસ અને કોરિયા ખાતેની તમામ બેઠકોની શરૂઆત થશે. गुजरात के अमरेली जिले के लाठी तालुका के जरखिया गांव से एक अनुसूचित जाति के युवक की हत्या की खबर सामने आई है. अमरेली जिले के लाठी तालुका स्थित जरखिया गांव में उस समय मातम पसर गया जब जन्मदिन पर एक अनुसूचित जाति के युवक की हत्या की खबर गांव में पहुंची. मृतक युवक की पहचान नीलेश राठौड़ के रूप में हुई है. उसकी मौत के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना सावरकुंडला बाईपास के पास स्थित द्वारकाधीश नमकीन दुकान पर हुई. बताया जा रहा है कि नीलेश वहां नमकीन लेने गया था, तभी किसी बात को लेकर बहस हुई जो मारपीट में बदल गई. गंभीर रूप से घायल नीलेश को भावनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आज निलेश कांतिभाई राठौड़ની ડેથ થઈ ગઈ, જે 22 તારીખે 22/5 અને આજે એના મૃતદેહને જરખિયા એના નિવાસ સ્થાને આજે લઈને આવ્યા છીએ. જે ફળિયામાં જે દીકરો રમીને મોટો થયો તે ફળિયામાં તમામ ગામના અને કાર્યકરો નાગરિકો બધા ઉપસ્થિત છે અને એની હાજરીમાં એને જે અંતિમ યાત્રા છે તે પૂર્ણ કરવાની છે. પંચતત્વમાં વિલીન થઈ ગયો છે હમણે થોડી જ વારમાં. એટલે મારું એવું કહેવું છે, અસામાજિક તત્વોનો કોઈ જાતિ કે ધર્મ હોતો નથી અને એ લોકો આતંકવાદી વિચારોના હોય છે. અને જિજ્ઞેશભાઈ મેવાણી તેમણે પણ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો. ભરતભાઈ સુતરિયા જે જરખિયા ગામના મૂળ વતની, હાલ એમનું નિવાસસ્થાન પણ જરખિયા છે. અમરેલી જિલ્લા સાંસદ એક ખેડૂતના દીકરા છે અને જેમણે સતત પ્રયાસ કર્યો અને અમરેલી જિલ્લાના તમામ કાર્યકરો, ભાવનગર જિલ્લાના તમામ કાર્યકરો, તમામ માનવતામાં માનનારા વ્યક્તિઓને દિલથી ધન્યવાદ. આજે મૂળ તો આ 4 દિવસ થા, આમ તો 16 તારીખની આ ઘટના ઘટી છે અને આ જે કોઈ આવા વ્યક્તિ હોય એનો કોઈ ધર્મ હોતો નથી, બરોબર. અને કોઈ, મારું તો એવું કહેવાનું છે કે કોઈને આરે ઝઘડો કરતા પહેલા તમે વિચાર કરો કે આપણે કઈ દિશામાં જઈ રહ્યા છીએ. કોઈ ઘરનો એક સંતાન હોય અને આવી રીતનું થાય. આજે અમે 4 દિવસથી આ ઘટના સાથે ડેથ થયું હતું અને અમે સાથે હતા. અમે કેટલું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે એ અમને ખબર છે. એટલે આજે અમે અહીંયા શાંતિપૂર્ણ એની જે વિધિ કરવાની છે આગળ કરવાના છીએ અમે. અને અહીંયા આજુબાજુથી અમારા ગામના તમામ લોકો અમારી સાથે છે અને આ અમારો એક પરિવાર છે. એ રીતે અમે આજે આ વિધિ પૂરી કરવાના છે અને આખો પરિવાર, ગામ એટલે એક અમારો પરિવાર, એમ બધા મળી અને અમે અહીંયા આજુબાજુના ગામથી બધા આવ્યા છે અને અન્ય સમાજના પણ લોકો આવ્યા છે. જોકે સમસ્ત ગામ તો છે જ, પણ આજુબાજુથી બધા આવ્યા છે, એને ખબર પડી. અને અમારે નિલેશભાઈ છે એ એક એવો વ્યક્તિ હતો કે ગામની અંદર 100માં માણસ પૂછાય એવો વ્યક્તિ હતો. એના પપ્પા પણ એ ટાઈપના જીવન જીવી ગયા છે. એટલે આજ અમને દુઃખ બહુ છે. પણ હવે જે કુદરતે અને જે આ લોકો નિરાધમોને ખબર નહોતી કે આ શું કરી રહ્યા છે તે લોકોને તો આપણે શું કહી શકીએ, પણ અમે અમારી સરકારી વ્યવસ્થા જે થાય એને સજા થાય તે બધું અમે કરી લીધું છે. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact
918738 72606 or 919879 572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. उत्तर प्रदेश के गोंडा में भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर एक वायरल वीडियो को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। गोंडा जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर एक वायरल वीडियो को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक सीसीटीवी फुटेज सियासी गलियारों में भूचाल ले आया है। वीडियो में भाजपा कार्यालय की सीढ़ियों पर जिला अध्यक्ष एक महिला कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि जिला अध्यक्ष ने सफाई दे दी है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। मैं गई थी लखनऊ से आ रही थी और रात को करीब 9:30 बज गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत भी ख़राब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं प्यास सी लगी है, मतलब दिक्कत महसूस हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे, इसलिए हमें कुछ सूझा नहीं। हमने अध्यक्ष जी के पास कॉल किया और अध्यक्ष जी के पास हमने कॉल किया। अध्यक्ष जी से हमने कहा कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत ख़राब लग रही है, हम यहाँ स्टेशन पे फंसे पड़े हुए हैं, हमको प्लीज़ या तो कहीं रुकने का थोड़ी देर रुकने का समय दे दीजिए और या तो हमें हमारे घर भिजवा दीजिए। तो अध्यक्ष जी बहुत व्यस्त थे, बोले कि अभी थोड़ी देर रुको, 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ। मैंने इंतज़ार किया, अध्यक्ष जी आए और फिर उन्होंने रिसीव किया और उन्हें फिर उनका कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तो बोले कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ किसी को छोड़ने और आता हूँ। फिर अध्यक्ष जी हमको लेके गए कार्यालय पे, बोले कि तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो और मैं अभी आता हूँ। जैसे ही मैं जा रही थी, 2-3 सीढ़ी चढ़ी, चौथे सीढ़ी जैसे क्रॉस की, हमें ऐसा लगा कि मेरा हिल वाली सैंडल पहनी थी, मेरा पैर फिसला कि चक्कर से आ गया। मैं ऐसे हाथ जैसे पीछे की कि सर जी पीछे खड़े थे, हमको थाम लिए। उन्होंने मुझे सहारा दिया। पैर फिसलने से अगर मेरा पैर भी टूट सकता था, मेरी और भी कहीं चोट आ सकती थी, सिर में चोट आ सकता था, बस यही बात है। और अध्यक्ष जी ने हमको कमरे तक छोड़ा और बोले आप तुम यहाँ अंदर रुको, मैं थोड़ी देर बाद अभी आता हूँ तो तुम्हें घर भिजवा देता हूँ किसी से। ये गलत है, अफवाह है, ये राजनीतिक मैटर है। अब ये लोग राजनीति के ऊपर उस पर ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फैमिली व्यवहार है, फैमिली संबंध है अध्यक्ष जी से। 12 अप्रैल की घटना है, कोई मुझसे मिलने नहीं आया था। 12 अप्रैल की घटना है, 9:09 बजे की घटना। हमको फ़ोन आता है कि अध्यक्ष जी मेरी तबीयत गड़बड़ है और मैं 2-4 घंटा विश्राम करना चाहती हूँ, तो अध्यक्ष जी हमारी रहने की व्यवस्था कर दीजिए। हमारे ज़िले के सक्रिय कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, तो और उसने हमको फ़ोन किया तो हम जाके उसको लेकर के आए। तो हमने कहा भाई अगर पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी पदाधिकारी है और दूर रहता है तो उसको कार्यालय में रखा जा सकता है। मैं लेकर के आया कार्यालय पर, कार्यालय से जीने से ऊपर गया तो 2 जीना चढ़ने के बाद तीसरे जीने पर चढ़ना चाहा तो उसको लगा कि भी चक्कर आ जाएगा,
गस आ जाएगा, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया, बस इतना ही हुआ। बाकी और कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो अगर पार्टी पदाधिकारी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मदद करना, सहायता करना, मैं तो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में ज़रूरत पड़ती मैं थाने पे जाता हूँ, तो अगर मदद करना गलत है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। यहीं के लोग हैं, अपना गार्ड वार्ड यहाँ पे रहते हैं, वही लोग आके मिले होंगे, उन्हीं से बातचीत हुई होगी, और कौन हो सकता है यहाँ पे, और कोई ऐसा नहीं है। बधाई ना, सक्रिय कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। क्या नाम है, कौन है? नाम तो अभी हम नहीं बता सकते, नाम अभी नहीं बता सकते ना, नाम तो पता करना पड़ेगा। सक्रिय कार्यकर्ता तो नाम तो पता ही करना पड़ेगा ना। ये बताए कि सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ताओं के पास नंबर रहता है, जिले का अध्यक्ष नंबर रहता है, नंबर उसके पास था, इसलिए उसने फ़ोन किया कि अध्यक्ष जी हम आपकी पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारी मदद कर दी, इसलिए हमने मदद किया। गुजरात के सूरत में इस बार बकरी ईद से पहले एक बकरा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गुजरात के सूरत में एक बकरे के शरीर पर उभरे चौंकाने वाले निशान, जो उर्दू में अल्लाह शब्द जैसे दिखते हैं। ये कोई कलाकारी नहीं बल्कि प्रकृति का चमत्कार माना जा रहा है। ये अनोखा बकरा जैसे ही बाजार में दिखा, वहां लोगों की भीड़ लग गई। कोई मोबाइल से तस्वीरें ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई दूर से हाथ जोड़कर देख रहा है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, मानो श्रद्धा का प्रतीक बन गया हो। बकरी ईद के मौके पर वैसे तो कई खूबसूरत और अलग नस्ल के बकरे बाजारों की शान होते हैं, लेकिन ऊना का ये बकरा खास बन गया है। खबर है कि इसकी कीमत लाखों में लग चुकी है, लेकिन मालिक इसे बेचने को तैयार नहीं। ये ऊन के अंदर शोएब नगर भी है, आमेना मस्जिद के बिल्कुल बाजू में। फार्म का नाम नूरानी गोट फार्म है और करीब अपने 10-12 साल से चला रहे हैं। स्पेशल में हमारे पास एक मेंढा आया है और करीब 10 महीने से हमारे पास पल रहा है, 10 से 12 महीने से। बहुत छोटा था तब हमने उसको मंगाया था और इसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। मतलब उसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ भीड़ जम रही है, रोज़ाना सुबह शाम लोगों को संभालना पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब मैं अलग से एक उसके लिए स्टेज बनाया हुआ, उसको रखा हुआ है और लोग दूर दराज से उसको देखने आ रहे हैं। कुदरती लिखा हुआ, हाथ से लिखेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम ऊन आए शोएब नगर में आमीना मस्जिद के पास बकरा, और करीब हम 8 से 10 साल से नाजिम भाई के पास ही आते और कहीं नहीं जाते। माशाल्लाह बहुत बेहतर मिलता है, दिल खुश हो जाता है। आज यहाँ एक मेंढा मिला है जिस पे नाम लिखा अल्लाह का, बहुत बेहतर नाम है, मतलब साफ अक्षर में दिख रहा है, बहुत बेहतर लगता है, दिल खुश हो जाता है यहाँ आने के बाद। भाई हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आवे और खरीदी करे। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर तालुका से एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। बड़ौदा जिले के शिनोर तालुका के सादली सेंगवा रोड पर रीसर्फेसिंग कार्य के दौरान लापरवाही सामने आई है, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन इसका खामियाजा 13 गांवों को भुगतना पड़ा। शिवम कंस्ट्रक्शन एजेंसी द्वारा किए जा रहे कार्य में सुरक्षा के बुनियादी मानकों की अनदेखी की गई, जिससे MGVCL की जीवित बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई और क्षेत्र की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। અહીંયા આપણે અવાખલ સાદલી રોડનું કામ ચાલે છે, ત્યાં રોડ બનાવતી એજન્સીના ટ્રક ડ્રાઈવર દ્વારા બેદરકારી કંઈક દાખવેલ અને અમારા અવાખલ JJFDના વાયર તોડી નાખેલ, જેના કારણે અમારા 13 ગામનો વીજ પુરવઠો લગભગ 3 કલાક ખોરવેલો રહેલ અને વાયર તોડી નાખતા અમારા જે માણસો હતા વીજકર્મીઓ એમને તાત્કાલિક બીજા કામ ઉપરથી બોલાવીને તાત્કાલિક સમારકામ હાથ ધરેલ હતું અને લગભગ 4 વાગ્યાની આજુબાજુ વીજ પુરવઠો ચાલુ કર્યો હતો।